In the last class, we discussed how wastewater is being treated, how polluted water is being treated, wastewater is being treated to get clarified water, which can be used for different purposes, if not for drinking water. We also discussed how can we become an active citizen in and play an active role in maintaining hygiene and sanitation all around us, keeping in mind that water which is being wasted can be source of various waterborne diseases and other diseases also. We have to play an active role in keeping ourselves aware and making others aware about being keeping your surroundings hygienic and clean. Okay, there are certain better housekeeping practices which we have to implement in our daily life so as to have a better hygienic and sanitized conditions. What are those practices? What are those practices? The first one being, we should always take care that we are not throwing cooking oil, fats down the drain. जो हमारे किचन की ड्रेन होती है, not to throw while washing the utensils. जो हम वॉश करते हैं, यूटेंसिल्स वॉश करते हैं, तो वी शुड मेक श्योर दैट जो खाने का बचा हुआ ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल है या फिर फैट्स हैं, इट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन, थ्रोन इनटू द ड्रेन. ठीक है, ये बाय मिस्टेक भी नहीं करना, बिकॉज़ इट विल व्हाट विल हैपन, इट विल क्लॉग द ड्रेन्स. क्लॉग मतलब उनको ब्लॉक कर देगा, ड्रेन्स को ब्लॉक कर देगा एंड पाइप्स को हार्डन कर देगा. और उसके बाद जब ये through the drain it will pass into the soil, it will block the pores of the soil. So soil के जो pores हैं उनको block कर देगा. इससे जो water percolation होगा, natural water percolation, that will be reduced. तो ये जितनी भी चीजें हैं, effectiveness of water percolation को वो disturb कर देंगी. So it should not be practiced. Instead we should throw oil. ना आप बोलेंगे कि where should we throw them? तो ये ऑयल एंड जो फैट्स वगैरह हैं या दूसरे इस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनको दे शुड बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन्स. अब दूसरा आ गया हमारे पास केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स. ये सारी चीजें जो कॉमनली घरों में हमें यूज करते हैं या फेंकते हैं, मेडिसिन हो गई, सॉल्वेंट्स हो गए, ये common practice है. In case they are found at home, they are not of use, they should be poured into the drains. But ये chemicals हो गए, insecticides, oils हो गए, medicine हो गई, they should not be thrown again into the drain because they may kill the microbes that help in purifying water. So always make sure that they are also disposed of safely, but not into the drains. ठीक है ना, हमारे जो घर के किचन ड्रेन होते हैं या दूसरी तरह किसी तरह भी जो सीवेज सिस्टम उसमें नहीं आने चाहिए, they will also affect the effectiveness of the water. वाटर में मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया कि देयर आर प्लेंटी ऑफ गुड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन देयर. तो वो जो गुड माइक्रोब्स होते हैं, व्हाट विल हैपन इन केस they are mixed with these all things, so these microbes will not be able to survive and they will not be able to purify water. तीसरी अब better housekeeping practice जो है, we should always make sure that कि जितनी भी tea leaves होती हैं, solid food remains होते हैं, these are all sanitary towels होते हैं, napkins होते हैं, कोई cotton के used पैड्स हो सकते हैं, कॉटन की बैंडेजेस हो सकती हैं. They should also not be thrown anywhere carelessly, but they should be thrown into the dustbins. मतलब वो हमें जो हमारे टॉयलेट के फ्लशेस होती हैं उनमें हमें सैनिटरी टॉवल्स नहीं डालने चाहिए. हमें जो पेपर नैपकिन होते हैं वो भी फ्लश आउट नहीं करने चाहिए, बिकॉज ये इवेंचुअली सारे जो होते हैं they will clog the drains also, and once they go into the sewage
दे आर नॉट गोइंग टू ये जो होते हैं ड्रेन्स को चोक करके फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन को बंद कर देंगे. सो दिस हैम्पर्स इन द degradation process. So sanitary towels and napkins. यूज टी लीव्स तो बहुत कॉमनली जब हम लोग घर में चाय बनती है और हम लोग यूटेंसिल्स वॉश करते हैं तो हम उसको सीधे we put it into the sink itself. तो ये सारी प्रैक्टिसेस हैं या फिर कोई और छोटा फूड वेस्ट है ये भी किचन सिंक में नहीं जाना चाहिए. They should be all thrown into dustbins. And if the food, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, if the food items you have left in the, otherwise you should not leave. But अगर आप छोड़ भी रहे हैं कुछ ऐसी चीजें, तो they can be disposed of into a into somewhere, some place in the open, जहाँ पर कि some जो आप कह सकते हैं omnivores जो होते हैं, जो कि they eat both grass and flesh, तो वो animals इनको consume कर सकते हैं. Birds consume कर सकती हैं. तो फिर आप ऐसी चीजें you can put it in the open, if not into the dustbins. But ये जो sanitary towels हैं, napkins हैं, tea leaves हैं, used tea leaves हैं, ये कोई toys हो गए, cotton की bandages हो गई, ये सारी की सारी we should not put it into the drain. Instead we should put it into the dustbin. So these are certain common housekeeping practices that we should follow. In keeping our surroundings clean also, and to minimize or eliminate the waste and pollutants. ठीक है, ये सोर्स पे ही अगर हम इनको मिनिमाइज कर लेते हैं, इन चीजों को हम टेक केयर कर लेते हैं, तो जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं वो भी क्लीन रहेंगी, हाइजीनिक रहेंगी, और मोर जो chances of getting diseases, that also can be ruled out. All right, so all these things you will have to take care while staying at home. These are some things which we can also do it as children also. It is not for the adults, but ये सारी चीजें अगर आप देखते हैं कि कहीं someone is putting it into the drain also or down the sink of the kitchen also, then also you can tell them that it should not be done because it is hampering the process. और gradually क्या होगा कि जो हमारी सीवर ड्रेन्स होंगे, सीवरेज सिस्टम होगा, वो चोक होगा और उसी के कारण वो ओवरफ्लो करेगा and the rest of the problems will follow. So all these things should be taken care because ये सारी चीजें जो हैं they are ultimately related with sanitation and diseases. Sanitation and diseases, because if you are not keeping your, अगर हम ये सारी practices नहीं कर रहे हैं तो हमारी जो drains हैं वो सारे के सारे चोक होंगे. ठीक है, और जो सीवेज है that will overflow, और जब वो ओवरफ्लो करेगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा, हमारे घर की ड्रेन्स जो है वो चोक होंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनमें डिजीज कॉजिंग जर्म्स जो हैं, माइक्रोब्स जो हैं, दे विल डेवलप, एंड व्हाट विल हैपन, इट विल मेक अ गुड place for breeding of other mosquitoes and other flies. और ये mosquitoes और flies हमें पता है, they are the most you can say one of the most dangerous insects for spreading the diseases. तो keeping ourselves, कौन-कौन से diseases होती हैं, हम लोग को ये भी ध्यान रखना है. जो हमारे वाटर अगर कंटेमिनेट हो जाएगा, नॉट प्रैक्टिसिंग ऑल दीज थिंग्स, तो वाटर कंटेमिनेट होगा, और वाटर अगर कंटेमिनेट होता है तो वाटर बोर्न डिजीजेस हो सकती है. वाटर बोर्न डिजीजेस कौन-कौन सी होती हैं? वाटर बोर्न डिजीजेस हैं, इनफैक्ट हमारे बहुत सारे, बिफोर कमिंग टू वाटर बोर्न डिजीजेस, हमारे बहुत सारे ऐसे फेलो कंट्रीमैन हैं जो कि ओपन में डेफिकेशन करते हैं. अभी तो हम लोग बहुत देर से देख रहे हैं कि वी आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स, जितने भी ओपन डेफिकेशन है उसके लिए आप लोग एड्स भी देखते हो. ऑफ लेट तो बहुत एड्स आ रही थी कि जितनी भी ओपन डेफिकेशन है, ओपन डेफिकेशन मतलब जो लोग ओपन फील्ड्स में जाकर दे रिलीव देमसेल्व्स. समझ आ रही है बात? डेफिकेशन का मतलब समझते हैं? Put your digital thumbs up.
नहीं, कोई भी नहीं समझता? ओनली अंशिता एंड अनवी एंड बानी, इनके अलावा किसी को नहीं पता लग रहा? लेट मी चेक. So there are a large fraction of people in our country still who are doing this practice of defecating in open fields, मतलब खेतों में जाते हैं, पंजाबी में जैसे कहते हैं, है ना? समझ आ रही है बात? तो वो जो प्रैक्टिस है that should be avoided. Reason behind कई लोगों, आप लोगों ने देखा होगा, you travel by train also and sometimes you go near the रेलवे ट्रैक के पास तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, देखा होगा आपने. अगर आप कहीं ट्रेन से ट्रैवल किया, आपको याद होगा कि रेलवे ट्रैक्स के पास लोग जरूर डेफिकेट करते हैं ओपन में, नो शर्म एंड लिहाज, ठीक है ना? तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. रीजन बिहाइंड ये जो ट्रैक्स के पास जाते हैं, फील्ड्स में जाते हैं, ये सारे के सारे जो है मेनी टाइम्स डायरेक्टली वाटर बॉडीज में भी डेफिकेट करते हैं, डायरेक्टली वाटर बॉडीज में. They don't find place to defecate, तो वो सीधे वाटर बॉडी में चले जाते हैं. अब आप सोचिए कि जो पानी हमारे लिए सोर्स है फॉर ड्रिंकिंग, वहां पर लोग अगर डेफिकेट करेंगे, या वो सॉइल जहां पर हम ग्रो कर रहे हैं अपनी वेजिटेबल्स, अपनी फील्ड्स में जो हम ग्रो कर रहे हैं डिफरेंट क्रॉप्स, तो ये जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा है ना, दैट इज अ हेल्थ हैजार्ड. It can cause water pollution, it can cause soil pollution, and it can also दोनों surface water और ground water को pollute कर देता है. Open defecation जो है either in fields or railway tracks or in water bodies directly, दोनों चीज cause कर रहा है. It is causing both soil and water pollution. हमें पता नहीं लगता है, लेकिन वाटर पोल्यूशन तो इस रेट पे कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों इस प्रैक्टिस से जो है वो पोल्यूट हो रहे हैं, ठीक है ना? और अगर वो पोल्यूट हो रहे हैं, एंड इफ इट इज गेटिंग पोल्यूटेड, देन व्हाट विल हैपन? जितना भी ग्राउंड वाटर है, जैसे कि वेल्स हो गए, ट्यूब वेल्स हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, रिवर्स हो गए, ये सारे के सारे सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर है, ठीक है? वेल्स, ट्यूब वेल्स और रिवर्स, ठीक है, ये सारे के सारे सोर्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर है. ग्राउंड वाटर हमने पोल्यूट कर दिया, कैसे? बाय ओपन डेफिकेशन. हमने डायरेक्टली नहीं, वी आर नॉट डूइंग इट एट द प्लेस इटसेल्फ, बट वेयरएवर वी आर डूइंग इट, इट इज परकोलेटिंग डाउन इनटू द सॉइल. तो इवेंचुअली वो जाके ग्राउंड वाटर में मिक्स हो रहा है. विल बी डूइंग इट हाउ? ग्राउंड वाटर जो है, ये वेल्स, ट्यूबवेल्स, रिवर्स, जो कि जहां से हम टैप कर रहे हैं, नीचे से ग्राउंड से हम पानी जो निकाल रहे हैं, वो सारी की तरफ से परकोलेट होकर बना है बहुत सारा पानी वहां पे. तो ये जब हम इनमें से पानी निकालेंगे, वो ऑलरेडी पोल्यूटेड होगा, और अगर वो पोल्यूटेड होगा तो ये सबसे कॉमन रूट है फॉर वाटर बोर्न डिजीजेस. इट कैन कॉज वाटर बोर्न डिजीजेस. वाटर बोर्न डिजीजेस का मतलब क्या है? कि वो डिजीजेस जो कंटामिनेटेड वाटर के कारण होती है. अब वो कौन कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जो वाटर के कारण होती है? इनमें है कॉलेरा, इनमें है टाइफाइड, इनमें है जॉन्डिस, ठीक है? ये सारी की सारी वाटर बोर्न डिजीजेस है. इसमें है पोलियो, मेनिंजाइटिस, ये ब्रेन फीवर होता है, हेपेटाइटिस वेरी डेडली, एक बार हो जाए देयर इज नो क्योर फॉर हेपेटाइटिस, ठीक है? सो कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, ये सारी की सारी जो डिजीजेस हैं, ये सारी की सारी हाउ आर दे कॉज्ड? बाय कंटामिनेटेड वाटर. कंटामिनेटेड वाटर से हमें कोई भी डिजीज हो सकती है. वी हैव नॉट डन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू शुड अंडरस्टैंड, वी आर नॉट डूइंग
practicing open defecation, but there is someone who is doing it and उसके कारण water pollute हो रहा है, और वही polluted water as a source from tube wells is reaching our home, and when we are taking that, we can be infected by any of these waterborne diseases. So it becomes very important for all of us to be aware. We are not doing it in our part, but we should always make sure that if someone else is doing it, we should be aware and make them aware as to not to practice this, because we can be affected by all these waterborne diseases. All right. In our country, there is a lot of problems. Why they are going for open defecation is because they don't have access to closed washrooms, okay, proper toilets. They don't have access. One reason can be lack of money, poverty bhi ho sakti hai, but still government has taken initiatives to make toilets which may not be using water also. कुछ वर्मी कंपोस्टिंग के बेसिस के ऊपर जहां पर कि वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स बनाई जाती हैं. तो वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स जो होती हैं, they are actually using, they're called as vermi processing toilets. आप लोगों ने लोअर क्लासेस में वर्मी कंपोस्टिंग सुना हुआ, राइट? तो ये जो वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स होते हैं, दे आर टॉयलेट्स इन विच ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है, आपने वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ा था ना, तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या था, जहां पर कि आपने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अर्थवर्म से यूज करके उसको डिकम्पोज किया था. तो वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट में क्या हो रहा है, अर्थवर्म यूज किए जा रहे हैं फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा. ह्यूमन एक्सक्रीटा को ट्रीट किया जाता है यूजिंग earthworms. Earthworms हमें पता है they are very good in decomposing. तो ये इंडिया में भी टेस्ट किया गया है and it has been found कि बहुत ही low water use टॉयलेट हो सकता है for safe processing of human waste. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल और हाइजेनिक मेथड है. इसमें जो एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, that is completely converted into vermi cakes and जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई, ऑफ सोर्स ऑफ रिच न्यूट्रिएंट्स व्हिच कैन बी पुट इनटू फील्ड्स. ठीक है, तो फील्ड को फर्टाइल कराने के लिए अगर हम इसको ट्रीट कर देते हैं तो इट इज नॉट हार्मफुल फॉर द सॉइल. बट इफ इट इज, मैंने इसीलिए बिगनिंग में कहा था, जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा है दैट इज वेरी डेंजरस. लेकिन अगर हम उसकी वर्मी प्रोसेसिंग कर देते हैं एंड इनको वर्मी केक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये वर्मी केक्स जो होते हैं they can be used in soil for making it fertile. अब ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या है, अगर हमारे पास ऐसे सिस्टम, एक तो ये हो गया वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स हो गए, कोई और भी मेथड होना चाहिए जिससे कि हम डिस्पोज ऑफ कर सकें ह्यूमन एक्सक्रीटा, और साथ में ही वो लो कॉस्ट होना चाहिए. तो एक लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज, ऑन साइट जो हमारा सीवेज है, डिस्पोजल सिस्टम, वहां पर ऑन साइट मतलब जहां पर वो प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर ही एक ये बहुत ही लो कॉस्ट का सिस्टम है जिसको कि डेवलप किया गया है इन इंडिया. दे आर बीइंग एनकरेज्ड. यहाँ पर सेप्टिक टैंक्स इसमें आ जाते हैं. इट इंक्लूड्स सेप्टिक टैंक्स जो कि स्मॉल एरिया में बनाया जा सकता है जहां पर सारा वेस्ट जाता है. केमिकल टॉयलेट्स हो गए, कंपोस्टिंग पिट्स हो गई, कंपोस्टिंग पिट्स हो गई, ये सारे के सारे बहुत लो कॉस्ट सीवेज सिस्टम है. इनकी ही हेल्प से अलग अलग मेथड्स हैं. सेप्टिक टैंक्स हो गए, केमिकल टॉयलेट्स हो गए, कंपोस्टिंग पिट्स हो गई. दे आर सुटेबल फॉर प्लेसेस जहां आपकी प्रॉपर सीवरेज सिस्टम नहीं है, जहां पर अभी म्युनिसिपैलिटी का प्रॉपर सीवरेज सिस्टम नहीं है. उनमें से ये चीजें यूज कर
we can adopt these kind of techniques to dispose of the human waste. हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है, आइसोलेटेड बिल्डिंग्स में भी हो सकता है, कहीं पर 4-5 घर हैं उनका भी मिलाकर हम लोग ये जो सिस्टम है ये डेवलप कर सकते हैं, so that the waste जो है it is disposed of without using much of water also. कुछ organisms होते हैं which can be, ये जैसे septic tanks हो गए, there are few organizations also जो कि hygienic on-site human waste disposal technology offer करती हैं. इन मतलब जहाँ पर टॉयलेट सीट बनी होती है ना हमारे घर में, हम फ्लश करते हैं वाटर को तो इट गोज इनटू द ड्रेन, तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सक्रीटा होता है टॉयलेट सीट से विल बी फ्लोड टू द ड्रेन्स टू अ बायोगैस प्लांट, ठीक है, और बायोगैस प्रोड्यूस देयर, उसको हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर लेंगे, और ये जो है वेस्ट जो है दैट विल बी डीकंपोज्ड प्रॉपर्ली एंड द डीकंपोज्ड वेस्ट कैन बी यूज्ड एज अ मैन्योर इन फील्ड्स आल्सो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, एक वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट हो गए, एक सेप्टिक टैंक्स हो गए, इंटर टॉयलेट्स हो गए, कंपोस्टिंग पिट्स हो गए, ये सारे के सारे मेथड्स अप्लाई कर हम लोग जो ह्यूमन एक्सक्रीट है, स्पेशली हमारी कंट्री में जो डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीट है उसको हम इफेक्टिवली कर सकते हैं। नाउ ओके, ठीक है, अब आ गया कि हमारी पब्लिक प्लेसेस में सैनिटेशन हम कैसे रखें। हमारी कंट्री में जो है बहुत सारे अब तो चलो बिकॉज ऑफ कोविड देयर आर नॉट मेनी थिंग्स हैपनिंग और इट इज प्रोहिबिटेड आल्सो, बट हमारी कंट्री में अकॉर्डिंग टू वेरियस रिलीजन्स, वेरियस फेस्टिवल्स, बहुत सारे फेयर्स होते रहते हैं, बहुत लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, रेलवे स्टेशन हो गए, बस डिपो हो गए, वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो बस डिपोज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, रेलवे स्टेशन, दे आर वेरी बिजी प्लेसेस, मॉल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, बड़े बड़े पार्क्स हो गए, वाटर पार्क्स हो गए, तो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट डेली और लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड। अब ये जो वेस्ट जनरेट होता है इट मस्ट बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड, अदरवाइज इट कैन बी अगेन सोर्स ऑफ, इट कैन बी सोर्स ऑफ वेरियस नंबर ऑफ डिजीजेस, पेंडेमिक उसमें भी हो सकता है, एपिडेमिक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लेसेस होती है पब्लिक प्लेसेस, इनमें सैनिटेशन जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और गवर्नमेंट जो है दे हैव लेड द स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटाइजेशन बट वी आर नॉट फॉलोइंग इट। गवर्नमेंट ने तो अभी भी हमें बोला है वी शुड फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल फॉर कोविड, वी आर नॉट फॉलोइंग एंड सी द सिचुएशन नाउ, so we should follow all these guidelines, but we can contribute by maintaining sanitation at public places। हम अकेले अकेले भी करने लग जाए ना बेटा तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हमें जो वेस्ट होता है वी शुड नॉट थ्रो इट एज सच, हमें प्रॉपर्ली डस्टबिन्स में डालना चाहिए, अगर हमें को डस्टबिन नहीं मिलता है वी शुड कैरी इट बैक होम एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन्स। तो इसका मतलब हुआ कि ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, जब हम टॉयलेट्स यूज करते हैं, हम वी आर annoyed by dirty toilets, but we are the ones who are creating it also, so it becomes a very important responsibility of every citizen कि जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं वो हम हेल्दी स्टेट में रखें। और वो कैसे हो सकता है, जब हम गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस करेंगे, वी विल मेक इट एज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है ना। हम अपने आप एज एन इंडिविजुअल वी शुड मेक दीज प्रैक्टिसेस जो हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, जो हम वेस्ट डिस्पोजल है, यूजिंग टॉयलेट्स है, ये सारी चीजें हम कीपिंग इन माइंड दैट वी हैव टू कीप आवर सराउंडिंग्स, कीप आवरसेल्व्स हाइजीनिक एंड कंप्लीटली इन अ वे टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपर्ली। तो ये सारी चीजें अगर हम एज एन इंडिविजुअल करने लगेंगे तो सोसाइटी क्लीन हो जाएगी, हमारी वाटर बॉडीज क्लीन हो जाएंगी, हमारी एयर, हमारी सॉइल, हमारा वाटर सब क्लीन हो जाएगा। अगर हम ये सारी प्रैक्टिसेस इंडिविजुअली करेंगे, दूसरे पे नहीं छोड़ेंगे कि तुम करो तुम करो तुम करो, खाली प्रवचन नहीं देने हैं, हमें खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमें वेस्ट नहीं थ्रो करना है, हमें प्रॉपर घर में भी प्रॉपर हाइजीनिक एंड सैनिटाइज कंडीशन रखनी है, अपनी सराउंडिंग्स में भी रखनी है। तो सभी लोग ऐसे करने लग जाएंगे तो हमारी वाटर बॉडीज
बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। हमें और आप बच्चों को भी बहुत लॉन्ग टाइम तक वाटर, गुड वाटर, healthy water, clean water will be available to all of us. All right, so that is all for this chapter. If you have any doubts, we can take up now.